Namaskaram, good morning, Sat Sri Akal, my dear friends and students. And my name is Pankaj Kumar Yadav, and I am going to teach you physics. And the chapter 1 is motion along a straight line. We will be discussing about motion along a straight line. And before discussing this chapter, we are going to discuss some basic aspects which are involved in this particular chapter to comprehend the different topics involved in this particular chapter. So we are going to discuss all these things. So let's begin. The first and foremost important topic which we are going to discuss is the branch of physics which deals with the motion, and that is mechanics. Let's deal. What is mechanics? So mechanics is that branch of physics which deals with particularly the motion of the object and what are the factors which causing the motion. We also study about that. जितने भी factors हमारी motion को cause करते हैं, for example forces which are involved in order to consider the motion, तो वो forces भी study करेंगे, मोशन को कॉज करने वाले और अदर फैक्टर भी स्टडी करेंगे एंड मोशन को भी पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे. सो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स इज नोन एज मैकेनिक्स. वी मे राइट इट डाउन लाइक एज मैकेनिक्स branch of physics which deals with motion of the object and factors behind the motion. Factors behind the motion. All these aspects are deal in the mechanics. So factors, what are those factors which are involved? That first of all force and different aspects also which are involved we will be discussing in it. Further, in order to simplify those things and study of the motion, the branch has been further categorized in two ways. What are those two ways? The first one is kinematics and the second one is dynamics. First one हम क्या discuss करेंगे? Mechanics की branch kinematics after that dynamics. So what are the aspects of motion which we will be studying in kinematics? Kinematics में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो kinematics में हम लोग पढ़ेंगे कि motion कैसे हो रही है, मोशन के बारे में पर्टिकुलरली, और इसमें जो फैक्टर होते हैं मोशन को उसको कंसीडर नहीं किया जाता कि मोशन किन वजहों से हो रही है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द मोशन. तो वो सारे फैक्टर नहीं, बल्कि पर्टिकुलरली हमारा पर्पस रहेगा कि मोशन को स्टडी करें. सो वी स्टडी मोशन and in dynamics what do we study? In dynamics we will study the factor behind the motion as well. मोशन को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बिहाइंड जो फैक्टर्स होते हैं जो मोशन को कॉज करते हैं we will be studying about that. So factors behind motion as well as motion So suppose you are studying Newton's gravitational law, Newton's laws of motion,
all those aspects are covered in which branch? Dynamics branch. And in kinematics, we will study motion, equation of motion, acceleration, speed, velocity, distance, displacement, all those fundamental things which are involved in order to grasp the command over motion, we will be studying about that. So that is the one aspect that we will be discussing. तो हमारा focus जब we are studying along about motion in a straight line, then we are studying kinematics. तो हम अपना ये स्टडी अब सेंटर्ड करते हैं काइनेमेटिक्स को समझने में. तो काइनेमेटिक्स को समझने में सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो होता है कि हाउ टू डिस्क्राइब अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मैकेनिक्स. हाउ टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो पोजीशन हमें अगर आइडेंटिफाई करनी है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक ओरिजिन, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसे क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, वो हम लोग कंसीडर करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या है. तो रेफरेंस पॉइंट को जिसे ओरिजिन मान लेते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर करें जिसे क्या कहते हैं, रेफरेंस. We will use coordinate axis in order to locate the position of the object. कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, मूव कर रहा है, तो उसकी लोकेशन अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प लेंगे. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेंगे और उसके साथ साथ डायरेक्शन एनवेज. जब डायरेक्शन को भी हमें लेना है तो डायरेक्शन की भी कंसिडरेशन लेंगे कि पोजीशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में नहीं कंसीडर कर रहे हैं. सो द कोऑर्डिनेट एक्सिस and after that directions. These are certain aspects which we'll be considering while describing the position of the object. And this is also known as frame of reference, because frame of reference जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिलेटिव में हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, all those quantities are calculated on the basis of, on the behalf of, with respect to your frame of reference. So it is understandable to how to point out, how to discuss about frame of reference कि इन सारी चीज़ों को हम define कर पाए. तो next up was frame of reference. Frame of reference involves coordinate axis, origin. Origin is the starting point जहाँ से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम अपनी सारी स्टडी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही कैलकुलेशन होती है जब भी कैलकुलेट. फॉर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग हेयर, वी कैन कंसीडर दिस इंस्टीट्यूट, दिस रूम एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हम कुछ स्टडी कर रहे हैं और किसी शॉप पे जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जा रहे हैं, तो यहाँ से लोकेट कर सकते हैं ये हमारा ज़ीरो हो गया और उसके बाद क्या हो गया, ज़ीरो से कितना दूर कोई लोकेशन है, कोई शॉप है, तो उसके रेफरेंस में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है. तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंप्लीटली आपकी चॉइस है, जहाँ से स्टडी कर सकते हो उसके रेफरेंस में क्या कर सकते हो, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर सकते हो. यहाँ है तो यहाँ मान लो कोई एरोप्लेन में बैठा हुआ इंसान है, एरोप्लेन में बैठ करके वो नीचे के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वो एरोप्लेन का पॉइंट हो जाएगा. वहाँ पर एक्सिस आप ड्रॉ कर लो कि एरोप्लेन आपकी जा रही है, यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर मान लो एरोप्लेन है तो ये, और कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है नीचे, ये दूर जा रही है, उसके पास जा रहा है, जैसे जैसे एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे दूर जा रहा है. तो इन ऑर्डर टू लोकेट
यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. आफ्टर दैट मोशन, द वेरी फंडामेंटल थिंग कि मोशन क्या होती है. तो मोशन वर्ड का जो ओरिजिन है, मोशन वर्ड का, वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से आता है, जिसकी फंडामेंटल मीनिंग आपकी इंग्लिश में होती है, जिसकी फंडामेंटल मीनिंग आपकी मूवमेंट होती है. तो अगर कहीं मूवमेंट हो रही है, इट मीन्स दैट वी आर हैविंग मोशन, या दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग मोशन. तो ये सिचुएशन होगी. सो मोशन का मतलब मूवमेंट. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है, फॉर एग्जांपल ये रूम क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, और मैं क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया. अब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंटली मैं पढ़ाते हुए मूव कर रहा हूं, सो आई एम हैविंग मोशन. आप फैन को ऑब्जर्व करो, फैन अगर चल रहे हैं तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, वो भी एक मोशन कर रहे हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन. ठीक. अर्थ क्या करती है, कॉन्स्टेंटली मूव करती है, वो भी मोशन कर रही है. जब मोशन हम लोग समझते हैं तो मोशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है. इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to surrounding, विथ टाइम. टाइम भी इन्वॉल्व होगा, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करोगे आप, तो टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज करो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम, देन इट इज said to be in motion. मोशन. जब मोशन समझ में आता है तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है रेस्ट का, और रेस्ट के साथ ही मोशन का कॉन्सेप्ट उसी का अपोजिट होता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो टाइम के साथ, फॉर एग्जाम्पल ये पोडियम है, ये पोडियम इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम बीतता जा रहा है, यहीं पर फिक्स्ड है, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे ये पोडियम क्या है, रेस्ट में है. ठीक. तो ये रेस्ट वाला सिनेरियो हो गया कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन ना चेंज कर रही हो टाइम के साथ, और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या कर रही है, टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो उस सिनेरियो में आपकी मोशन हो रही होगी. तो ये रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट हो गए. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस बेसिक क्वांटिटीज लाइक एज फंडामेंटल. जो भी क्वांटिटीज क्या की जा सकती है, मेजर की जा सकती है, ठीक, जिनसे लॉज डिफाइन होते हैं, गवर्न होते हैं फिजिक्स के, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. जब भी फिजिकल क्वांटिटी वर्ड आए, यानी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी ऑब्जर्व, और उनको टर्म में लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन किया जा सकता है, तो फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. अब फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है. उसके बेसिस पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. सो स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स आर व्हाट? स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसकी यूनिट इन्वॉल्व होगी. जैसे एग्जाम्पल आपने लिखा कि किसी, मान लो रूम की लेंथ है 10 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, तो अगर रूम की लेंथ मेजर करें, लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी एज वेल, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो लेंथ मेजर कर रहे हैं अगर रूम की, मान लो 20 मीटर, तो ये क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या हो गई, यूनिट हो गई. तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जिसमें हो ओनली, उसे क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं. और दोज क्वांटिटी
जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली दे possessing मैग्नीट्यूड, दे आर नोन एज स्केलर्स। उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मास, स्पीड, डिस्टेंस, प्रेशर, टेम्परेचर, ऑल दोज क्वांटिटीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्केलर्स। और जैसे जैसे चैप्टर हम लोग पढ़ते जाते हैं, पूरी मैकेनिक्स और भी हम क्वांटिटीज, और 12th में पढ़ेंगे और भी वहाँ भी स्केलर क्वांटिटीज, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये सारी चीज़ें भी, कई सारी क्वांटिटीज हम लोग पाएंगे जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हैं। फंडामेंटल चीज़ क्या है समझने में कि इसका केवल होता है स्केलर्स। वेक्टर को ध्यान से समझेंगे। वेक्टर्स इन्वॉल्व्स मैग्नीट्यूड, directions, and fulfill laws related to direction. Laws related to directions. Vector are those quantities which have magnitude, directions, as well as a third factor which is known as डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल लॉज होते हैं जिन्हें वेक्टर लॉज कहा जाता है। वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन, पैरेललोग्राम बना करके, ट्राइंगल बना करके उसे हम समझा जाता है। दैट विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग चैप्टर। ठीक, तो उनको क्या कहा जाए, ये लॉज भी अगर फुलफिल हो रहे हैं तभी कोई क्वांटिटीज क्या होगी? वेक्टर होगी, अदरवाइज वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी। अगर ये वाला क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, इफ एनी क्वांटिटी डज नॉट सेटिस्फाई लॉ रिलेटेड टू द डायरेक्शन, दैट इज वेक्टर लॉस, तो वो वेक्टर नहीं होगी। कुछ एग्जांपल वेक्टर्स के, तो सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट आती है। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है आपका? वेलोसिटी आता है, एक्सीलरेशन आता है, फोर्स आता है, मोमेंटम आता है। ऑल दीज एग्जाम्पल आर all these are example of vector: displacement, velocity, acceleration, force. तो आई होप स्केलर्स एंड वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये वाली लाइन ध्यान देनी है, कभी कभार हम मिस कर देते हैं मोड की लॉज रिलेटेड, केवल कह देते हैं मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और इसी बेसिस पे डिफाइन कर देते हैं। नॉर्मल जब करंट फ्लो होती है, करंट आप सॉल्व किए होंगे, क्लास 10th में पढ़ करके आए होंगे, करंट ऐसा लग रहा होगा करंट की डायरेक्शन है, करंट डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, लेकिन करंट जो होती है डायरेक्शन से रिलेटेड लॉज को, यानी वेक्टर लॉज को नहीं फॉलो करती, तो दैट्स वाई करंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, भले से डायरेक्शन होती है। तो कई सारी चीज़ों क्वांटिटीज को पाओगे डायरेक्शन होते हुए भी वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन हम लोगों को देखनी होगी। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस पर कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो किसी पाथ पे मूव कर रही होगी, वो पाथ की लेंथ आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जिस पाथ पर आप मूव कर रही है, तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। सिंपल सा फंडामेंटल, कि जितना भी पाथ कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल की, वो उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। सो डिस्टेंस हाउ वी विल कैलकुलेट? टोटल पाथ लेंथ covered by an object is known as distance. Distance has only magnitude. डिस्टेंस के पास क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट होगी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इस बिहाफ पे कह देंगे डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन डिस्टेंस बी जीरो और नेगेटिव? अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो मोशन कर रही हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज हैविंग मोशन, विल द डिस्टेंस बी जीरो और नेगेटिव? सो आंसर विल बी नेवर. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो वो कुछ ना कुछ पाथ लेंथ कवर करेगी, और पाथ लेंथ कवर करेगी तो उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी? एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. और ऑब्जेक्ट मोशन में है, कुछ ना कुछ अगर मोशन कर रही है तो जीरो भी नहीं होगी. मान लो रेस्ट में है तो कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डेफिनेटली इट विल बी पॉजिटिव. तो डिस्टेंस when an object is moving or having motion, then distance cannot be zero or negative. It will be positive only. ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी. डिस्टेंस की यूनिट आपकी सिंपल मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, और भी कई सारी लार्जर यूनिट होती हैं. लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. जो सिलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो बड़ी बड़ी डिस्टेंस, जैसे मान लो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, मून और अर्थ के बीच में, और प्लानिटरी डिस्टेंस, तो सिलेस्टियल बॉडीज की डिस्टेंस अगर हम निकाल रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा? डिस्टेंस की बड़ी बड़ी यूनिट यूज करते हैं. छोटी छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए काफ़ी छोटी छोटी यूनिट यूज की जाती हैं, जिनमें कुछ एग्जाम्पल है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर. ये हम लोग अवेयर होंगे थोड़ा थोड़ा इसका 10th में भी, और आगे भी अवेयर होंगे इन सारी क्वांटिटीज से, तो छोटे बड़े. ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस. Now we will discuss about one of the most important concept, displacement. How displacement is different from distance. Distance से कैसे अलग होता है तो वो देख लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट. जब भी आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, कोई दो पॉइंट जिनके बीच आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे. और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट पाथ होता है. तो while defining the displacement we will be saying that आप एक पॉइंट ले लो जहां से स्टार्ट कर रहे हो मोशन या शुरू कर रहे हो उसे इनिशियल पॉइंट, और जहां जो एंड पॉइंट है उसे क्या कह देंगे? फाइनल पॉइंट कह देंगे. तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी. तो दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial point and final point is known as displacement. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? स्ट्रेट लाइन. दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज स्ट्रेट लाइन होती है. स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे, उसकी लेंथ कंसीडर करेंगे, जो स्ट्रेट पाथ होगा. ठीक. जैसे मान लो ए से बी हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ए से बी ट्रेवल कर रहे हैं, कई पाथ होंगे. ये वाला पाथ 1, ये वाला पाथ 2, ये 3 वाला पाथ, ये जो स्ट्रेट पाथ है. तो ये जो थर्ड वाला पाथ है ये क्या होगा? आपका स्ट्रेट पाथ होगा, एंड दैट विल बी डिस्टेंस. इसकी डिस्टेंस हम मेजर कर लें तो ये क्या हो जाएगा?
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स डायरेक्शंस। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्शंस, ठीक है। वैसे प्लेन पे या पेपर पे या बोर्ड पे जब भी हमें डायरेक्शन डिटरमाइन करनी हो तो हम क्या करते हैं, एरो बना लेते हैं, एक हॉरिजेंटल एरो और एक वर्टिकल ये लाइंस बना लेते हैं, और ये ऊपर जो होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं जब भी आप पेपर में या प्लेन में डिटरमाइन करें डायरेक्शन। सो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के साथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट आएगा, जबकि डिस्टेंस में क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो ये सिचुएशन हो गई। और क्या पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जैसे डिस्टेंस हमने कंपैरिजन किया था, डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही हो, मूव कर रही हो, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बट डिस्प्लेसमेंट while having the motion, it can be negative, it can be zero, it can be positive. नेगेटिव इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन मोस्टली हम लोग डील करेंगे, तो नेगेटिव अक्सर डायरेक्शन इन्वॉल्व करता है। तो डिस्प्लेसमेंट कम्स विथ डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये लॉज को भी डायरेक्शन से रिलेटेड फॉलो करता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी after that it can be zero, negative as well as positive. As well as positive. Now here comes a situation कि distance zero कब होगा। तो बड़ी सिंपल से सिचुएशन अगर आप कंसीडर करो, आप किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो। सबसे सिंपल सा एग्जांपल कि किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो, जहां से आपने शुरू किया, एक चक्कर अगर एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो वहीं पर आ जाओगे। वहां पर आने के बाद आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो इस सिनेरियो में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप यहाँ इंस्टीट्यूट से घर गए और घर के बाद फिर यहाँ इंस्टीट्यूट पे आ गए सेम लोकेशन में, तो अगर पूछा जाए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो कई सारे एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में क्या है, डिफरेंस ना हो। ठीक है, तो इस बेसिस पे कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो अब कुछ आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने। डिफरेंसेस आप पॉइंट आउट कर सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। स्केलर, वेक्टर, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। एक पॉजिटिव होगी, एक टोटल पाथ लेंथ होती है, कुछ भी रैंडम पाथ लेंथ अगर कवर कर रहे हो, सबको ऐड कर लो सारी पाथ लेंथ को, वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो हम सड़कें बना रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, रेलवे लाइन कहीं, ठीक, कोई भी पाथ अगर डिस्प्लेसमेंट को कंसिडरेशन में ला करके किया जाएगा तो हम देखेंगे हमारे व्हीकल की, हमारा जो रॉ मटेरियल है, मान लो रोड बना रहे हो तो जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है, व्हीकल के फ्यूल अगर स्ट्रेट पाथ कवर कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ बना रहे हैं हम दो पॉइंट के बीच, दो जगहों के जाने के बीच, तो कई सारी चीजें सेविंग होती हैं। तो अक्सर पाथ बनाने में कोशिश की जाती है डिस्टेंस ना देख करके डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखा जाए। ये डिस्प्लेसमेंट अगर कंसीडर करेंगे यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू रूट, और उसके अकॉर्डिंग रोड बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग रेलवे लाइंस बनाएंगे, तो हमारी क्या होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी उसकी एज कंपेयर टू डिस्टेंस। ठीक, तो इस तरह से डेली लाइफ में भी हमारे एसोसिएट हो सकता है कि कैसे हम लोग
दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कम करते हैं, सड़कें बनाई जाएं और रेलवे लाइंस बनाई जाए या फिर और कोई भी पाथ के थ्रू रिलेटेड आप कंस्ट्रक्शन करें, तो फ्यूल भी बचत होगी। तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दैट सिनेरियो एज वेल। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड। तो let's see what problem we have right now. Suppose I hope this is visible to all of you. The question is, let me zoom it. Questioner is asking about what? Let's see. A person walks 5 kilometers towards east, then turns and walks 3 kilometers toward north. After that, he walks 4 kilometers toward west, finally 2 kilometers toward south. Then in that scenario, you have to find out the total distance traveled and you have to find out the displacement of the person, magnitude as well as direction. We have to calculate. So first of all, मैंने बताया था कि आप directions को consideration में ले लो. You need to consider the direction, which direction is implying in which direction. North, south, east, west. Now the question is saying a person walks 5 kilometer toward east. मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है और यहां से 5 किलोमीटर वो क्या हुआ, पर्सन ईस्ट में मूव किया, तो ये हो गया ईस्ट में मूव किया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 5 किलोमीटर. आफ्टर दैट टर्न्स एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. तो नॉर्थ क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा यहाँ इस पॉइंट से, तो इधर टर्न करेगा अगर नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न करना है. अगर साउथ का होता तो नीचे की तरफ टर्न करता. तो यहाँ से वो क्या करता है, 3 किलोमीटर, अगर यहाँ तक लगभग मान ले एक क्वांटिटी यहाँ गया और 3 किलोमीटर वो नॉर्थ ट्रेवल किया. आफ्टर दैट ही वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. तो इस पॉइंट से वेस्ट की डायरेक्शन इधर होगी. देखिए ये वेस्ट है, इस तरह पॉइंट आउट किया जा रहा है प्लेन पर. तो 4 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक, अगर मान ले ये 5 किलोमीटर है तो इसके अप्रॉक्सीमेशन लगा करके हम एक अंदाजा लगा लेंगे, ये यहाँ पर मान लो हो गया 4 किलोमीटर. 4 किलोमीटर किस डायरेक्शन में हो गया, वेस्ट में. एंड आफ्टर दैट फाइनली 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ. इस पॉइंट पे अगर साउथ की कंसिडरेशन लें तो साउथ क्या हो गया, नीचे वाली डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पर आपका यहाँ तक मान लो कंसीडर कर लो, ये आपका 2 किलोमीटर हो गया साउथ डायरेक्शन में. फाइनली इस पॉइंट पे आ गया. पॉइंट का नाम दे देते हैं. इनिशियली मान लो ए से शुरू किया था, ए बी सी डी एंड ई. तो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए. इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट ई. इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट की कंसिडरेशन जरूरी होती है कब, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं. डिस्टेंस अगर हमें कवर करनी है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करें कि कितनी कवर की, तो डिस्टेंस कवर्ड. तो इस नोटेशन के फॉर्म में पहले उसने ए बी कवर की, ए बी के बाद बी सी कवर की, बी सी के बाद सी डी कवर की, सी डी के बाद डी ई कवर की. तो टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगी. और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो नॉर्मल तरीके से इसे ऐड करते हैं. 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐड कर लेंगे. It will be 14 kilometer. I hope it is clear. 14 kilometer will be the total distance traveled by the object. तो ये हो गया सिनेरियो. दूसरी सिचुएशन में हमें क्या करना है, उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कवर करना.
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेरी फंडामेंटल डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हम देखेंगे हमारा यहां से थोड़ा सा हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये क्या हो जाएगी वैल्यू 1 किलोमीटर। अगर इधर से हम लोग कंपैरिजन करें, इतना 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की। तो ये हो गया 1 किलोमीटर और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने EF नाम दे दिया। A और E ये है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? AE होगी। देन डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन दिस सिनेरियो विल बी, डिस्प्लेसमेंट विल बी AE। अब AE कैलकुलेट करना है। AE कैलकुलेट करने के लिए ये क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। कौन कौन सी साइड्स? सॉरी, AE एक साइड है और ये डिपेंड करेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के। ये देखो AFE एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इसमें ये AE जो है हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। अगर AE हम निकालें तो AE की वैल्यू क्या हो जाएगी? AF का स्क्वायर और प्लस EF का स्क्वायर। AF देखेंगे हम लोग कितना है, ये देखो AB टोटल लेंथ कितनी थी? 5 किलोमीटर है और B से लेकर के F तक की जो डिस्टेंस है वो C से लेकर के D तक की डिस्टेंस के इक्वल होगी, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर FB हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट जो बचा AF वो 1 किलोमीटर होगा, तो 1 किलोमीटर का स्क्वायर। और इन द सिमिलर फैशन EF भी क्या होगा? 1 किलोमीटर का स्क्वायर। It will be 1 plus 1, it will be √2, distances are measured are in kilometer, then displacement will be in kilometer. डिस्प्लेसमेंट आपका किलोमीटर में होगा। तो ये सिनेरियो हो गया हमारा, एक अच्छा सा एग्जाम्पल था जो आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स को क्या करता है? क्लियर करता है। तो ये हो गया डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन पे पाथ पे मूव करके। अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का, जो कि क्या होगा? सर्कुलर आर्क पे। उस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है। सो distance and displacement on circular arc। किसी सर्कुलर पाथ के पोर्शन पर हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाए और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो पहले आते हैं डिस्टेंस करने के लिए। हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल हो गया और यहां से यहां तक ये सरकमफ्रेंस का एक पार्ट हमने कट कर लिया, जिसका नाम दिया A और B। क्लास 11th में हम लोग पढ़ते थे, अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस या सर्कल की बाउंड्री को, ठीक, मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं और क्लास 10th में सर्कल, क्लास 9th में भी पढ़ाया जाता है, 8th में भी पढ़ाया जाता है, सारे में। अगर सर्कल की बाउंड्री का हम लोग क्या करें? कट करें, ठीक है। तो सर्कल की बाउंड्री जिन पार्ट्स में सेक्शनलाइज होती है उन्हें क्या कहा जाता है? आर्क कहा जाता है। तो आर्क दो तरह के हो गए, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। हम इस माइनर आर्क के थ्रू स्टडी कर रहे हैं कि A से B तक, मान लो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक मूव कर रही है, A से B तक अगर मूव कर रही है, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस सिनेरियो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम A टू B।
तो ए टू बी जब मूव कर रहा है तो पहले देख लो ए से बी, ये जो आर्क है सेंटर पे मान लो एक एंगल बनाता है और ये एंगल क्या है, थीटा है। एंगल जो होता है डिग्री में मेजर किया जाता है, लेकिन जब भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, किसी तरह की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा एंगल को क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो एंगल को हमेशा जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो एंगल विल बी इन रेडियन, जहां जरूरत पड़ेगी हमें तो रेडियन में कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी, हमने एक फॉर्मूला देखा था जो प्लेन एंगल होता है या एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये जो एंगल होता है ये आर्क की कितनी लेंथ है, ए बी, और रेडियस मान लेते हैं हम लोग स्मॉल आर है। ये भी स्मॉल आर होगी क्योंकि ये भी रेडियस का काम, ये ओ सेंटर हो गया, ओ ए या ओ बी बोथ आर रेडियस का फुल आपका प्लूरल होता है रेडियाई, 2 रेडियाई है तो रेडियाई हो गई। तो यहां पर अगर मान लो ए से बी तक जा रहे हैं, तो ए से बी तक जा रहे हैं तो यही आर्क जो होगा यही डिस्टेंस होगा ए से बी तक ट्रेवल करने में, क्योंकि यही पाथ लेंथ है ए से बी तक। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी की अगर डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो ये क्या होगी, आर्क लेंथ ए बी। ये आर्क लेंथ जो होगी आपकी यहां से लेकर के यहां तक, इस लेंथ को कैलकुलेट करना होगा, और इस आर्क की लेंथ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, यहां से अगर इंप्लाइज करें तो आर्क क्या हो जाएगा, आर्क विल बी एंगल इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस। तो यहां हो जाएगा एंगल क्या है, थीटा इनटू रेडियस क्या है, आर। ठीक, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। आप डिग्री में रखकर नहीं सॉल्व कर सकते, थीटा को क्या होगा, रेडियन में करना होगा। ठीक, तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो थीटा रेडियन में हो गया और आर्क लेंथ निकल जाएगी, इस तरह से डिस्टेंस निकल जाएगी। जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक क्या होगा, ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये कॉर्ड होगी। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी ऑन सर्कुलर आर्क विल बी कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी होगी। कॉर्ड ए बी कैसे निकालेंगे, तो कॉर्ड ए बी का आपका फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूं। कॉर्ड ए बी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और साइन। ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इसका क्या कर देते थे, हाफ कर देते थे। तो ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 2r साइन थीटा अपॉन 2। कैसे आया ये फॉर्मूला, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचे, बट अभी के लिए इस जस्ट फॉर्मूले को समझे। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ एंड द एंगल विच इज मेड बाय द आर्क एट द सेंटर, उसका हाफ करेंगे और साइन लेंगे। साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th की मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ भी पढ़ जाता है। जो बच्चे बायो से लिए हैं तो वो फिजिक्स के साथ साथ ही सीखेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ा 10th की नॉलेज अप्लाई करिएगा तो वो सिचुएशन में तो ये होगा 2r sin theta by 2। हाउ डिड वी अराइव एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, कैसे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे हम लोग पहुंचे, तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 2r sin theta by कैसे आया, तो इस फिगर को हम थोड़ा सा सेपरेटिव फॉर्म में यहां लिख लेते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये हो गया हमारा a b और यहां सेंटर पे बनना है o। ये पूरा का पूरा एंगल थीटा था, इसका हम क्या कर रहे हैं, बाई सेक्टर ड्रॉ कर दे रहे हैं, जो कि क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर भी होगा।
ये थीटा बाई 2 हो गया, ये भी थीटा बाई 2 हो गया, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है यहां पर ओ एम मान लो नाम दे देते हैं, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। हमें क्या निकालना है, अगर एक एक्स पता चल जाए तो एक एक्स पता करके हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स कर देंगे, कॉर्ड निकल जाएगी और कॉर्ड विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो एक एक्स को निकालने के लिए यहां इस सिनेरियो में अगर इस पर्टिकुलर थीटा बाई 2 एंगल की बात करें तो साइन थीटा बाई 2 लेंगे रेशियो। यहां पर ये थीटा बाई 2 और एंगल के जस्ट सामने वाली साइड ये यहां पर परपेंडिकुलर का काम करेगी, जो कि क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और अपॉन में 90 डिग्री का जो एंगल है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो साइन थीटा बाई 2 जो होता है, साइन जो भी एंगल लोगे वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा r, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा अपॉन 2। आप 2x कर दोगे तो आपको कॉर्ड निकल जाएगी, 2r साइन थीटा अपॉन 2, एंड 2x विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से दैट इट इज द कॉर्ड लेंथ ऑल्सो। कॉर्ड ही इस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट होगा जब आप सर्कुलर आर्क कंसीडर कर रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। सो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट वी हैव अराइव्ड एट दिस फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले पे अराइव, ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जब भी सर्कुलर आर्क की निकालनी है तो क्या करेंगे, एंगल को रेडियन में मेजर करेंगे और उसको रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो सिनेरियो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर कंसीडर कर रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ आपका 2 टाइम्स कर देंगे किसका, रेडियस का, फिर एंगल जो होगा उसका हाफ करके साइन ले लेंगे। साइन की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग। तो इस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर लेक्चर फॉर दिस टॉपिक पर्टिकुलरली। तो लेट्स डिस्कस about some certain problem related to that. So this is the problem we need to focus on. Kindly pay your whole attention toward this because it is certain tricky. और उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये सीख ले। मान लो एंगल हमारा डिग्री में, थीटा, मान लो थीटा से डिनोट करें एंगल, ये 30 डिग्री है, इसे आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो रेडियन में कन्वर्ट होने के लिए 30 डिग्री जो है इसे 30 इंटू पाई अपॉन 180 कर सकते हो। 30 से 180 कट कर दो तो ये क्या हो गया, पाई बाई 6 रेडियन। रेडियन को RAD शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो रैड, ठीक, रेडियन हो गया। क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सिनेरियो हो जाएगा। और उल्टा भी देख लेते हैं कि रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करें। तो पाई बाई 6 रेडियन है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 6 है, जैसे यहाँ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते थे, इसे क्या कर देंगे, उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे 180 अपॉन पाई से। ये पाई से पाई कट गया, फिर 6 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 6 3 और 0 लग जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से जब आप पाई अपॉन 180 से डिग्री में मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो उस सिनेरियो में आपका एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। और जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज यहाँ जो जो डिग्री आ रही है उनको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू प्रॉब्लम। तो ये हो गई सिनेरियो सिचुएशन में। अब पहला क्वेश्चन करा, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हुई है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है।
आफ्टर दैट द फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, कई केसेस बनाए हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं। कह रहे व्हेन द बॉडी कवर्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे एक सिनेरियो देख लेते हैं, कम 90 डिग्री कवर करता है। अगर देखो मान लो यहाँ से ऐसे बना है एक सेमी सर्कल, ये पूरा पाथ ऐसे बना, ये वो हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री का हाफ करेंगे तो यहाँ पर ये पहुँचेगा, ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ, एक 90 डिग्री अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू कर रही है इस पॉइंट से, तो यहाँ से जा करके यहाँ तक जाएगी, तो इस आर्क पे इतना जब ट्रेवल कर रही है तो वो क्या होगी, 90 डिग्री का पाथ क्या की, ट्रेवल की। 180 पूछे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा शिफ्ट हो जाएगा, पूरा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कंसिडरेशन कर ली तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। इन सिनेरियो को हम कंसीडर करेंगे, ठीक। तो फिगर इस तरह से बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ वी आर टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो 90 डिग्री को हम क्या करेंगे, पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, ये कैंसिल हो जाएगा। 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 रेडियन लिख सकते हैं। अब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे इस सिनेरियो में। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r इंटू थीटा। r की वैल्यू दी है 7 मीटर एंड थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 2 मीटर विल बी योर डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पाथ। तो ये डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट देखना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला 2r साइन थीटा बाई 2, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मान लो यहाँ से d से डिनोट करते हैं, तो d से डिनोट करते हैं, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ जो रेडियस है, रेडियस को स्मॉल r से, और साइन जो एंगल है उसका हाफ करना है, तो ये जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू 7 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री अपॉन 2। 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14, और ये 2 से 90 डिग्री कैंसिल आउट होगा, तो इसे सिंप्लीफाई करके साइन 45 डिग्री। जब साइन लग रहा है तो हमें रेडियन या डिग्री कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने पढ़ी है ये वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग साइन 45 की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है फॉर पर्टिकुलर एंगल। तो ये हो जाएगा 1/√2। 14 अपॉन √2 है, इसे ऊपर नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर लेंगे, तो 14√2 अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7√2 एंड दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट d। डिस्टेंस को ऐसे ही लिखा था हमने, कहीं कहीं डेल्टा से भी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग नोटेशन में। मैंने इस मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कर दिया है, d से, एंड ये आपका आर्क लेंथ का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इन द सिमिलर फैशन जब एंगल आपका 180 डिग्री हो, तो इसे क्या करोगे आप, यहाँ पर वैल्यू रख के थीटा के जगह 180 रख करके इसे रेडियन में कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा पाई रेडियन। सॉल्व करने पर यहाँ रखेंगे 180, 180 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई रेडियन वैल्यू आएगी, पाई रेडियन हो गया, और उसके बाद इस फॉर्मूले में हम लोग पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 थीटा के जगह पाई, तो 7 पाई मीटर हो जाएगा, और यहाँ रख देंगे 180, 180 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 90 डिग्री आएगा। तो उस सिनेरियो में भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, डिस्कस करते हैं कि तीसरे सिनेरियो में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो तीसरा सिनेरियो में कह रहा है द बॉडी कवर्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। जब भी बॉडी 360 डिग्री का एंगल कवर करती है, इसका मतलब वो पूरा एक कंप्लीट साइकिल करती है। एक कंप्लीट साइकिल का मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस सिचुएशन में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। व्हेन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो वो सिनेरियो बहुत इजीली विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट अप्लाइंग एनी फॉर्मूला, वी कैन गेट द रिजल्ट इन दैट सिनेरियो। सो दैट्स व्हाई वी विल गो थ्रू द फॉर्मूला एज वेल। फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं और इजीली लॉजिक से भी हम लोग बता सकते हैं कि कंप्लीट साइकिल हो रहा है एज पर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देयर displacement is what, difference, shortest distance between initial point and final point,
एंड इन दिस सिनेरियो कोई भी डिफरेंस रह नहीं जा रहा है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. सॉरी फॉर लिटिल बिट नॉइज, अगर नॉइज आ रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट उस सिनेरियो में बड़े इजीली निकाल सकते हैं. तो थर्ड वाला ये पहला, तीसरा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, दूसरा आप इजीली सॉल्व करते हो. तीसरा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है. थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री. इट मीन्स वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. ठीक, ये इंप्लाई कर देगा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. कोई डिफरेंस नहीं होगा तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस. डिस्टेंस एक कंप्लीट साइकिल में आप फॉर्मूला ही लगा लीजिए, r इंटू थीटा. थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो 360 डिग्री को आप अगर कैलकुलेट करो तो 5 पाई अपॉन 180 से डिवाइड करोगे, ये कट जाएगा, आ जाएगा 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन हो गया, और r की वैल्यू 7 है, और ये हो गया 2 पाई. ये कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14 पाई मीटर. पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं आप, क्या रख सकते हैं? 14 इंटू पाई की वैल्यू 22/7. अगर कटने लायक रहे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर. तो 7 2 जा चला जाएगा, ये आ जाएगा 44 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी. डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहे फॉर्मूले से, वैसे तो निकाल लिया लॉजिकली हमने बाय द डेफिनेशन. डिस्प्लेसमेंट आर्क लेंथ सी हो जाएगा 2 इंटू आर साइन थीटा अपॉन 2. 2 इंटू आर, आर की वैल्यू 7, और यहाँ हो जाएगा साइन 180. साइन 180 जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इट इज़ अ टिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, इसकी वैल्यू 0 आती है. फॉर द मोमेंट हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, इस पर फोकस रखते हैं, और ये हो जाएगा 0. तो इस सिचुएशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर कंप्लीट साइकिल पूरा कंप्लीट कर लेती है, तो उस सिनेरियो में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. और डिस्टेंस क्या हो जाती है? 2 टाइम्स ऑफ आपका डिस्टेंस जो निकालेंगे इस फॉर्मूले से निकालेंगे. ठीक है, तो इस सिचुएशन में ऐसे करेंगे 2 पाई आर, क्योंकि सर्कुलर जो होती है तो सरकमफ्रेंस ही कवर करेगी पूरी बाउंड्री, तो 2 पाई आर से निकाल सकते हो. वही आया देखो फॉर्मूला, 2 पाई आर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर सिचुएशन. सो दीज आर द एस्पेक्ट विच वी हैव लर्न टुडे. मोशन के बारे में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? मैकेनिक्स क्या होती है, जिस ब्रांच में मोशन हम लोग पढ़ते हैं उसे मैकेनिक्स कहते हैं. मैकेनिक्स फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स. काइनेमैटिक्स में हम मोशन की एस्पेक्ट्स को ही पढ़ते हैं, केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं. मोशन किस वजह से हो रही है, किन फैक्टर्स, किन रीजन्स का रोल है, उन फैक्टर्स, उन रीजन्स को काइनेमैटिक्स में हम अवॉइड करते हैं. आवर होल अटेंशन शुड बी टुवर्ड ओनली द एस्पेक्ट ऑफ मोशन. मोशन जो हो रही है उसे पढ़ना. डायनेमिक्स में क्या करते हैं हम लोग? मोशन के साथ साथ उनके फैक्टर को भी क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, समझते हैं. तो ये हो जाता है. आफ्टर दैट हम लोग कैसे एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं उसको सीखा. रेफरेंस फ्रेम क्या होता है उसको सीखा. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट, मोशन, ये वैसे सिनेरियो सीखे. फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कहीं भी चूज कर सकते हो अपने सुटेबल कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, जहाँ से आपको मेजरमेंट करना है, ऑब्जर्वेशन करना है. हमने इस इंस्टीट्यूट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ट्रीट किया, और भी कई जगहों को जैसे आप सुटेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को सीखा और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए. आफ्टर दैट देयर कम्स द कॉन्सेप्ट स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द फर्दर अपकमिंग लेक्चर. ठीक,
Thank you so much.